Mehek, thank you for that Valentine message. Thank you, Abhay, for joining. We have Hello. Shobha and Shobha who also joined us. Thank you, Suma, Jyot Singh, Saran, Anshu Kumar, Dhansukh Vyas, Anjali. Anjali has also joined and Paul has also joined us. Aarti Saxena has also joined, Kalpana Saha. Thank you everyone and very, very good afternoon. This is Veena signing in from Hello English. We are about, I was a little late, I know. बट थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई है आई होप एवरीबडी इज रेडी विद देयर notepads and all as you know I take session and I this is the mandatory part that you have to sit with your notepads and pens today we are going to talk about the third conditional clause लास्ट वीक हमने थोड़ा सा वर्ब्स पे ही बात करी थी इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू और उसी के कंटिन्यूएशन में हम आपके पास की बात आज फिर से करेंगे व्हिच इज रिलेटेड टू आवर थर्ड कंडीशनल क्लॉज क्लॉज क्या चीज है क्या है ये क्लॉज सेक्शन क्या है अभी हम आपको फटाफट से समझाते हैं बट ये जो आज हमारा सेशन है द क्लास दैट आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज अ लिटिल आई से जो आप बेसिक लेवल सीखते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर आता है थोड़ा सा ऊपर आता है सो आई वांट ऑल द फोकस I want wherever required take a notepad and copy it down because this is what is expected of you. Yes, there are learners who can join me directly. We can have chit chat. हम बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं. I'm sharing with you the pro invite. अच्छा, my voice is echoing. Thank you, Mehak. Mehak, just check. Is this okay now? Is this Manjot Singh? Thank you if I'm looking attractive to you. Is my voice clear? Is it better? Lovepreet Kaur, yes, you have rightly written Now, there. madam. That's what we're going to talk about. Is it better? Now it is better, madam. Okay, Anjali, thank you so much. So, अगर आप चाहते हैं मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए तो आप VEENA 1010 वो जो प्रो इनवाइट किया है उस पे जाइए मेरा नाम टाइप करिए यू कैन जॉइन मी देयर आर अदर टीचर्स एज वेल जो भी टाइम पे आप आते हैं इनकी भी सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेट फेयर एनफ चल अब हम बेसिक सेंटेंसेस को जब हम पढ़ते हैं आई स्टार्टेड द क्लास कीप योर नोटपैड्स एंड पेन रेडी So what do we understand by framing a simple sentence? When we frame a simple sentence, it will have a subject, it will have a verb. Clear? Always remember. This is the most important mandatory part. Keep a subject, keep with the verb, then you can frame a proper sentence. I can say sit down, it's a full sentence because I'm referring to a person, I'm referring to someone, I'm referring to a group, I'm saying them to sit down. So I have a subject and then I have a verb which is giving an instruction. Now that instruction is related to my action. So that's a verb there. Fine. So I have a subject, I have a verb, which itself makes a clause. इसको हम क्लॉज बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा वर्ब और सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव हम किसके बारे में कह रहे हैं क्या क्या है ये एडिशनल बातें होती हैं बट दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड दैट मींस व्हेन आई से सिट डाउन ऑन द टेबल सेट द टीचर now set the teacher is supposed to be the main clause क्योंकि टीचर का इंस्ट्रक्शन था उसने क्या कहा बैठ जाओ वो हमारा जो दूसरा पार्ट आता है वो दूसरा पार्ट हमारे मेन क्लॉज मतलब जो बात हम कहना चाहते हैं वो मेन चीज है कहना पहली हमारी रिक्वायरमेंट है तो वो हमारा मेन पार्ट ऑफ द क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया कि तुम बैठ जाओ This is what exactly we are going to talk in today's session. Chaliye, let's learn through the help of our slides to make our life little easy for us. Okay, just 1 second. Okay, so this is how we go about it. यहाँ पे एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा. If Neha had been on time, I would not have fought with her. Now this is conditional. हमने जो आपसे बात करी, something which I was teaching, which I started with the session, was to make you understand there is a subject. In the subject, there is a subject and a verb. That's a sentence which falls in the section of clause. At the same time, you have somebody main talking about, so that will be main thing that you are addressing to. Rest all things will be the subordinate part. I hope for till this place it is clear. Now, the condition is when we're talking about the third condition is something which falls in the category of if. That means if this would have not have happened, this would have.
So it's an hypothetical kind of a thing that we are referring to. तो यहाँ हम क्या बात, hypothetical हिंदी में काल्पनिक को कहा जाता है, which is unreal. So हम ये कहते हैं कि अगर नेहा उस समय वक्त पे आती तो हो सकता है कि मैं उससे कभी भी नहीं लड़ती. अगर नेहा वक्त पे, हो सकता है वक्त पे नहीं आई हूँ और झगड़ा हो गया, तो ऐसा कहा जा रहा है. अब झगड़ा तो हो चुका है, लेकिन हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन हो रही है, जहां हम ये कहते हैं कि अगर वो आती तो अगर जो है ना, इफ जो है वो एक हाइपोथेटिकल इफ कंडीशन है. ये एक तरह की चांसेस, अगर ऐसा होता तो मतलब अगर मेरी फ्लाइट वक्त पे हो, तो इस तरह के जो कंडीशन बेस्ड सेंटेंसेस हम बनाते हैं उसमें हम इफ का इस्तेमाल करते हैं. अब मैंने आपको शुरुआत करी थी समझाने से सेंटेंसेस, फिर मैंने आपसे बात करी कि आपका एक मेन सेक्शन ऑफ क्लॉज आता है, फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, मतलब एक क्लॉज जिसपे सारा वाक्य निर्धारित है, फिर उसके साथ में दूसरा वाक्य जो जोड़ा जाता है, जिसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस सेंटेंस में अगर वो मेन क्लॉज नहीं हो तो. इसलिए हमें मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी साथ के साथ समझना जरूरी है. अब यहाँ पे अनरियल काल्पनिक बात क्या है? इफ नेहा हैड बीन ऑन टाइम, कंडीशन है, सशर्त है यहाँ पे थर्ड अनरियल कंडीशन. तो अनरियल जो काल्पनिक आप सोच रहे हैं, जो शर्त आप रख रहे हैं कि अगर वो टाइम पे आती, अगर बारिश नहीं हुई होती तो बाढ़ नहीं आती, तो मतलब काल्पनिक है ना, ऐसा हो चुका है ऑलरेडी. बट there are times you have to make or frame such kinds of thoughts या sentences also. जब हमें भूतकाल में हो सकने वाली काल्पनिक चीजें बतानी हो. अब ये तीसरी चीज को हमें समझना है कि एक जो कंडीशन हुई वो अभी हुई, बट उससे भी पहले कोई कंडीशन होती तो ये कंडीशन हमारी नहीं होती. That means I have to go in the section of a perfect form of the past where it's trying to understand कि जो सिचुएशन हो चुकी उसके पहले अगर वो सिचुएशन, जैसे पुलवामा अटैक की अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सिचुएशन बेस्ड things are always falling in the category of conditions. जब भी हम situations की बात करेंगे उनमें conditions लागू हो जाती है. अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, पर अगर नहीं कब आ रहा है, पास्ट में आ रहा है. I hope you are getting what I am trying to say here. Here, Neha in reality was not on time. The speaker is talking about a hypothetical situation and his reaction to the same, in which Neha would have been on time. Now look at that sentence here. Would have been. अगर आपको याद हो तो हमने क्या सीखा था? BEEN किस में आता है? परफेक्ट फॉर्म में. फिर हमने उसके आगे लास्ट क्लास में क्या सीखा था? बाय आएगा पैसिव फॉर्म को बताने के लिए. याद है आपको ये चीजें? इफ यू रिमेम्बर इट. नाउ हियर इट सेज एक सिचुएशन जो हो चुकी है वो सिचुएशन नहीं हुई होती अगर वो सिचुएशन, समझ रहे हैं? तो हम टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सच काइंड्स ऑफ कंडीशंस. ओके, सो द थर्ड कंडीशन जो हम आज समझना चाह रहे हैं, the third conditional therefore refers to a situation that is past and is impossible to change. तो अब हमारे लिए तीसरी कंडीशन क्या हो गई? वो कंडीशन जिसको हम वो है ही एक्चुअल में, तो देखो वो है ही नहीं, वो सिचुएशन है ही नहीं, उसको हम बदल सकते ही नहीं उस सिचुएशन. और है हुई कब ये सिचुएशन, कौन से टाइम पीरियड में? क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है तो वक्त बताना पड़ता है, तो वो हुई कब है? वो पास्ट में हुई. दैट इज द थर्ड कंडीशनल क्लॉज दैट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट. इफ आई हैडंट मिस्ड द बस आई वुड हैव अराइव्ड अर्ली. अगर मैंने बस नहीं, अब ये अगर कंडीशन है, मैंने बस नहीं एक ऐसी काल्पनिक सोच है कि अगर मेरी बस नहीं छूटी होती. फैक्ट क्या है? तुम छोड़ चुके हो, बस अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम लेट ऑलरेडी हो चुके हो. तो वो पास्ट की सिचुएशन बता रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ऐसा, उसको रेफर करके कह रहे हैं, जो कि चांस ही नहीं है, बिकॉज गलती तो ऑलरेडी हो चुकी है, तुम बस छोड़ चुके हो, तो वो इम्पॉसिबल सिचुएशन. सो दिस इज द कंडीशन बेस्ड. एंड द थर्ड कंडीशन दैट वी आर हियर रेफरिंग टू, एक ऐसी कंडीशन जो अब इम्पॉसिबल है बदलना, चांस ही नहीं, क्योंकि उसके आगे का एक्शन हो चुका है.
We also use the third unreal conditional to express regret about the past. Now, this is something which, a process of learning can be learned here by understanding कि हम ये जो कंडीशनल पार्ट हम जब काम में लेते हैं थर्ड कंडीशन को, तो ये रिग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई चीज को मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा हुआ था, या ऐसा अगर नहीं हुआ होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो रिग्रेट जो है, तब भी हम रिग्रेट को भी इसी तरह की चीज के थर्ड कंडीशनल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स ट्राई विद आवर एग्जांपल्स, you will better understand it more. I'll go through this once again. Pratap and Shobha, thank you for giving me the right answer. Even Anjali and Harman have given us the right answer there. If the weather, now, if the weather had been nice yesterday, we would have gone swimming. Now look at this sentence. Abhay and Paul, please ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पे ऊपर. Thank you Anj for joining and Suhana, please pay attention. All those जिनको दिक्कत हो रही है एक बार वापस से समझिए. Okay, मुबारिका खातून, आई एम सेंडिंग यू द प्रो इनवाइट. स्पेशली मैंने आपका नाम लेके बोला क्योंकि आप जूम क्लास अटेंड करना चाहती हैं. प्लीज कम एंड ज्वाइन. VEENA1010 मेरा कोड है. प्लीज कम एंड ज्वाइन. ओके ना. इफ से इट सेज इफ द वेदर. अब ये कंडीशन कैसे समझ आती है, क्योंकि वहां पे इफ लगा हुआ है. अंग्रेजी में इफ लगा होना मतलब कंडीशन है. तो मतलब अगर आपको भी कोई कंडीशन बतानी है तो इफ लगाना पड़ेगा. ठीक है, वो भी काल्पनिक ऐसा, और वो ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती, क्योंकि एक्शन आगे बढ़ चुका है. पास्ट है, आगे बढ़ चुका है वो भी एक्शन. अगर वेदर अच्छा होता कल तो हम स्विमिंग जा सकते थे. तो तुम वेदर तो कल अच्छा नहीं कर सकते ना, तुम स्विमिंग जा सकते. तो दोनों सेक्शन क्या होगा, पास्ट उसके पहले का एक्शन. दैट इज व्हाट परफेक्ट फॉर्म्स. when you draw a line to understand any of the perfect form, what do we understand? An action which has happened before it goes in the section of past. Sorry, it goes in the section of perfect. So what has happened? An action which happened, that means वो टाइम खत्म हो चुका है, वो पास्ट में हो चुका है, पर उससे पहले भी तो कुछ हुआ. उस पहले को रेफर करने के लिए हमको थर्ड कंडीशन लगाना पड़ता है. उस थर्ड कंडीशन को हम जिसमें डालते हैं वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म होता है. इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, इम्पॉसिबल सिचुएशंस को बताने के लिए. उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपने मन को रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं कि अगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं तुमसे मिल लेता. मतलब आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. तो ये थर्ड कंडीशन की जरूरत पड़ती है. ज्यादातर लोग रिग्रेट भी तो है. अगर आप किसी से नहीं मिल पाए, अगर किसी की डेथ हुई, उस टाइम पे आप नहीं पहुंच पाए, उसका कोई रीजन रहा होगा, तो आपको ये इस्तेमाल करना ही पड़ता है. दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड. I hope this sense is clear. Coming to this section, the class will extend 5 to 7 minutes today. If anybody has some appointment or anything, please check that and inform those people that will be coming a little late, or you can leave at 2 o'clock, whenever the time is. Now understand the grammatical part of it. इसका ग्रामर सेक्शन को भी एक बार समझते चलो. यहाँ पे लिखा है if कंडीशन. हमेशा याद रखो, सिंपल सेंटेंस है, इसको हमेशा याद रखना. if, अगर, हिंदी में अगर. if the weather, अब सब्जेक्ट क्या है, वेदर है. वेदर इन टोटलिटी इज टेकन एज अ सिंगुलर पार्ट. एक ही को लेके चलते हैं. अब यहाँ पे चूंकि हम थर्ड कंडीशन की बात करें ना, अगर मौसम, तो हमको वो आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर एम्फसाइज करना. अगर वो मौसम, तो मौसम तो रोज ही रहता है, पर वो मौसम की बात हो रही है एक स्पेसिफिक की, तो मैंने वहां आर्टिकल द लगाया. राइट. इफ द वेदर, अब वो वेदर जो है सिंगुलर है, तो मुझे हैड लगाना. चूंकि मैं परफेक्ट फॉर्म की बात कर दूं, तो मैंने वहां पे बीन लगाया. इफ द वेदर हैड बीन नाइस, कब, पास्ट था वो, इसलिए यस्टरडे. मतलब आएगा ही आएगा, just to denote that an action is we're talking about the past. Okay, then there is a pause, there is a comma. If the weather had been nice yesterday, we would have gone swimming. अगर ऐसा होता तो हम स्विमिंग पे जा सकते थे. Can I call here Abhay? Can you hear me?
अब है आप खाना खा रहे होंगे. ओके, इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग दैट आई कॉल्ड यू, सो सॉरी. अंजलि, आप कोशिश करेंगे, मैं कुछ सवाल पूछूंगी आपसे. अंजलि, हाँ. I will try. Don't worry, it's going to be simple. Just tell me when you are reading this sentence, इस सेंटेंस में हम फोकस किस बात पे कर रहे हैं, मतलब हमारा कहना मेन क्या चीज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. मतलब हम वेदर 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 के अच्छा बारे में. होता, हाँ, नहीं तो स्विमिंग को वैसे, जाना है, लेकिन वेदर अच्छा होता तो जाते. हाँ, तो मतलब हमारा फोकस किस चीज पे, स्विमिंग पे या वेदर पे. वेदर पे. ठीक है, ये बात अपनी याद रखिएगा. थैंक यू अंजलि. विल गो टू द नेक्स्ट एंड चेक. थैंक यू सो मच. आइए, अभी मैंने जवाब नहीं दिया, होल्ड पे है, उसको पार्क कर दीजिए, थोड़ी देर बात करते हैं. Yes, Manjot, I'm checking you. Even you have joined my. Okay. Abhay, Aishwarya, Shobha, Pratap, and Aslam have given us the right answer. Can I have Pratap here? Yes, ma'am. हाँ, If I had worked harder, I would have secured first position. secure. अगर Secure. मौसम मौसम की बात ही नहीं है. हाँ हाँ प्रताप. नो मैम. हाँ, तो आप हमको पूरी आवाज नहीं आई. आपने सेंटेंस तो पढ़ लिया, फिर आप जी. मौसम बोल रहे थे. एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज. अच्छा नहीं, नो मैम. इफ आई हैड वर्क हार्डर, अगर मैं अच्छा काम करता, आई सक्सेस तो पोजीशन, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता. ओके, अब मेरी ध्यान से सुनो. आई हैड वर्क हार्डर, अगर मैंने से अच्छा काम किया होता, आई वुड हैव secured first position. Secured first position. तो मैं पहले स्थान पर आ जाता. बिल्कुल सही बात. तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पहले स्थान की बात कर रहे हैं या मेहनत की बात कर रहे हैं? पहले जो हमने काम किया, इफ अगर मैं पास्ट टेंस में हार्डर हार्ड वर्क. प्रताप, मेरी बात को अच्छे से सुनिए. मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे मेरा जो मन है वो किस पे फोकस करना चाहता है, मेहनत पे या फर्स्ट पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, आप मैं फर्स्ट पोजीशन पे आता अगर ये मैंने मेहनत की होती पहले तो. जी, हार्ड वर्किंग की होती. जी. अंश एंड पॉल, कैन यू म्यूट योरसेल्फ, both of you? No, ma'am. Ansh and Paul, are you there with me? Ansh and Paul? Yes, ma'am. Yes, Paul, where are you? हाँ. Yes, क्या yes, प्रॉब्लम आई दोनों को सेंटेंस में बताओ. If I had worked harder, I would have secured first position. अंश, आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रही थी मैं, आपका आंसर गलत आया दोनों का, तो पूछना चाह रही हूँ कि गलती क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी. Yes, ma'am. मैंने जल्दी किया मैम, अच्छे से पढ़ा नहीं मतलब. अच्छा देखो, मैं ये इसको तो कॉल समझ में नहीं है मैम, मैंने इसको मिस रीड नहीं किया अच्छे से और क्विकली किया मैंने आंसर. ठीक है अंश, थैंक यू सो मच. कॉल आपका पता है? मैम इसका मीनिंग नहीं मेरे को पता है, इसलिए कुछ भी आंसर कर दिया. अच्छा देखो, मीनिंग तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुमको अभी मैंने इस सेंटेंस से क्या चीज बताई थी कि सिंगुलर के साथ में और फिर बीन साथ में लगा हुआ है, बताया था ना, किया था हमने यहाँ तो. फिर यहाँ पर भी इफ आई हैड वर्क्ड हार्डर आई वुड हैव. अब जैसा आपको पता है फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें हैव लगाना है, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर से हम वुड हैव. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपके सामने फिलअप के लिए आया था, तो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पूरा था ना आपके सामने. वी वुड हैव, यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा. आई हैड वर्क हार्डर आई वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन. प्रोसेस समझ आ रहा है? अब इसको ऐसे समझो, एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन. ये दो अलग अलग, मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट करा क्लासेस तक क्या समझाया, मेन क्लॉज चलता है, उसके साथ में एक सपोर्टिंग चलेगा. तो जब हम बात करते हैं मेन क्लॉज के साथ में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो आप देखेंगे दो पार्ट चल रहे हैं, दोनों पार्ट का अलग एक एक सेक्शन सिमिलर से तुम्हें दिखाई देगा.
उसको सिंप्लीफाई करके समझा रही हूँ, बाकी डिटेलिंग बहुत है उसमें अभी. If the weather had been nice yesterday, we would have. So I would have. I और we Okay. में कॉमन चीज क्या है? पॉल, I और we में कॉमन चीज क्या है? दोनों फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं. बस अच्छा. फर्क यह है कि वो सिंगुलर कर रहा है और वो प्लूरल कर रहा है. तो वहां पर भी हैव लग गया, आई पे भी, और वी के साथ भी हमने हैव भी लगाया. वुड और कुड को साथ साथ रखना पड़ता है जब हम कंडीशन की बात करते हैं. थोड़ा बस समझा रही हूँ, है ना. चलिए मनजोत, आई जस्ट चेक योर आंसर बेटा. वो ऊपर Okay. चला गया, दोबारा कॉपी पेस्ट करो मनजोत सिंह. थैंक यू पॉल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. कम, let's try. Reena, Pratap, Shobha, Abhay and Anjali. I don't know both. Shobha, Srinivas, she's there with me, na? Shobha, Srinivas, could you please Yeah. read this for me? Come. Ma'am. If it hadn't been so cold, I would have gone out. Very good. So if it, आप यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी हमने आपके लिए दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता. नॉट का इस्तेमाल भी हैड के बाद ही आया है. आपको पता है, इफ यू रिमेंबर इट, वी हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू टू कीप दिस सेक्शन टुगेदर. हैड प्लस नॉट एंड बीन, had and been for perfect form. So we have to take them together and continue to do it. Look at the second part of the section which says, I would have gone out. You think I would have gone out is the main clause, or it is talking about if it hadn't been so cold? Think about it. I'll come back because this is what we are going to learn for the next part. ये है जो हमें सीखना है एक और आज. If I hadn't eaten out, I wouldn't have had an infection. अगर मैं बाहर नहीं खाना खाता तो मुझे इन्फेक्शन नहीं होता. We also use the unreal conditional to express regrets about the past. अब ये regret ही आगे बढ़ रहा है हमारा. देखिए ज्यादातर ये sentences of third conditional regret, पछतावे के लिए ही काम में आते हैं ज्यादातर. अब ये पछतावा जो होता है ना, वो ऐसी चीजों के लिए होता है जो आपके बस में नहीं. बस में क्या चीज नहीं होती है? जो हो नहीं पाती है. मतलब वो अनरियल सिचुएशन, यथार्थ नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ फैक्ट. दिस इज नॉट समथिंग विच इज रियल. सो द कंडीशंस विच आर अनरियल आर एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस थर्ड कंडीशनल क्लॉज. सो हम थर्ड अनरियल कंडीशनल का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें पुरानी किसी बात को लेके खेद. अब पुरानी किसी बात को लेके खेद कुछ भी हो सकता है. माइट बी देयर वाज समथिंग व्हिच मस्ट हैव हैपेंड पास्ट 20 years बैक. अगेन वी कैन रेफर इट. हम उस बात की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे चर्चा करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे पास्ट फॉर्म में. पास्ट फॉर्म में. अब ये ईट, एट, ईटन, याद है आपको? थर्ड कंडीशनल, आई स्पेशली गिवन दिस वर्ड. थर्ड कंडीशनल आपने क्लॉज वहां पे लगाया है. और इफ, क्योंकि ये कंडीशन है, क्योंकि ये आप बताना चाहते हैं कि अगर का इस्तेमाल, इस शब्द है उसका इफ इस्तेमाल करते हैं. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू express to you, all of you. So if I dash the juice, I would have been fine. अब यहाँ पे had I के साथ हम क्या लगाएंगे? और असलम, शोभा, if I hadn't drunk, drink, drank, drunk. ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, जो मैंने आपको बोला ना, पास्ट पार्टिसिपल तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा. ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में. वो आपको मेंशन, दैट इज व्हाट इट इज. यू नीड टू लर्न व्हाट टू से. Learn what to say means the verb form, what is going to be the third form of the verb, that you have to really learn. That is very important. Okay, so it says if I hadn't drunk. So which is the first form of the verb? Drink. इसको हम root word बोलते हैं. So first form is drink, second is drank, third is drunk. मतलब जो अभी अभी हमारा पास क्या होगा उसके लिए आप ड्रैंक बोलेंगे. और परफेक्ट फॉर्म थर्ड कंडीशन के लिए जब आपको क्लॉज काम में लेना पड़ेगा, कोई पुरानी से पुरानी को जब आप उस पीने की बात कर रहे हैं तो ड्रंक, DRUNK. ड्रिंक प्रेजेंट सेंस के लिए भी हम काम में लेते हैं. ड्रिंक दिस. आइए मंजूर, if I had been a car, I would have not gone. If I had been a car,
ठीक है, but sense of sentence is not clear to me. Abhay, Harman, Aslam, Shobha, Ansh and Shobha have given the right answer. If I hadn't missed the bus, I would have arrived early. तो हमें दो चीजें तो पक्की याद करनी है. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है आई वुड हैव, फिर प्रेडिकेट लग जाता है, तो इसको याद पक्का से पकड़ के चलो. फर्स्ट कंडीशन पर क्लॉज जो हम लगाते हैं, इफ आई हैडंट मिस्ड द बस, मतलब अगर, हैड पास्ट, नेगेटिव नॉट, पास्ट पार्टिसिपल मिस्ड, कौन क्या चीज को, ऑब्जेक्ट डालोगे द बस, आर्टिकल द, क्योंकि रेफर हम कर रहे हैं बस के ऊपर, एम्फसाइज लगा रहे हैं. आई होप इट इज थोड़ा सा शायद समझ आ रहा हो. अभय, हरमन, असलम, शोभा, अंश एंड शोभा, both the Shobhas have given the right answer. Please go ahead. हाँ, आज कुछ हार्ड है, of course it is hard. मैंने पहले ही कहा था एक ऊपर लेवल पे ले जा रहे हैं, पर कोशिश करिए, ट्राई करिए. Kinza, you are typing it. Do you know BTS? We all know it's a group of musicians, music. Those people sing. Man, this one question I was asking, if I hadn't had yesterday, I would have been fine. What if I hadn't had yesterday? Kya? Fever? If I hadn't had fever yesterday, I would have been fine. Manjot, उसमें मुझे object नहीं समझ आ रहा तुम्हारे first part of the clause में. मंजोत, जो तुमने टाइप किया, थोड़ा सा सेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा. If you can just tell me. If I dashed with him, I would have met him today. So Shobha, Harman, Aslam, Abhay, Aishwarya and Ansh. So can I call Aishwarya to read this sentence for me, please? Yes, ma'am. If I hadn't fought with him, I would have met him today. Wow. So ऐसा कोई है जिसके लिए तुम सोच सकती हो ऐश्वर्या ये बात? It's Valentine's Day, so I'm asking. Are you okay in giving me the answer for this? अगर मेरी उससे लड़ाई नहीं हुई होती तो मैं आज उससे मिल लेती. Thank you ऐश्वर्या, thank you for coming. Okay. यहाँ पे है, अगर मेरी उससे लड़ाई नहीं हुई होती. Fight, fought, fought. So the first form of the verb, which is fight, second form fought, and the third form fought. That means the third conditional clause I'm supposed to use fought. So the past participle we are using here as fought. Okay? अगर हम यहाँ पे लिखे ना had been, तो फिर वो continuation में आएगा fighting. याद रखना. If I would have not been. Now here comes one more part of understanding जो हम बात कर रहे हैं. Unconditional clause को हम लिखते कैसे हैं? If के साथ subject लगाएंगे, फिर past perfect, जो मैं आपको sections में समझाती हुई चल रही हूँ. अगर ऐसे नहीं समझ आया तो otherwise also we can learn it. You have the subject and you can have would or could plus have plus past participle. Now what is this section trying to tell us? This section is trying to tell us that we have got two parts in the sentence here. Please pay attention. We have got two parts. कॉमा के पहले वाला पार्ट और कॉमा के बाद वाला. ठीक है, यहां तक समझ आया? It says the first part of the sentence will have if plus the subject. So if के साथ subject क्या है? I. What does the next part says? You should have past perfect. What is the past perfect form here? Had plus the third conditional. Confuse मत होना, being लगता है कुछ sections में छूटता भी है. Okay, so now it says plus at the section. फिर हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्शन है उसमें फिर से सब्जेक्ट आ रहा है. फिर वहां पे हम वुड लगा सकते हैं या कुड लगा सकते हैं. एंड देन कम्स द हैव पार्ट देयर एंड आफ्टर दैट कम्स द पास्ट पार्टिसिपल. सो यू हैव गॉट two such sentences. These two parts of the sentence are functioning independently, but they are colliding and connecting with each other. आगे बताते हैं. Abhay, Reena, Harman, Shobha and Aslam have given us the right answer there. देखते हैं. Manjot, sorry ma'am, my sentence is not proper. If I hadn't had eaten yesterday, I would have been fine. Why are you putting Manjot that in brackets? I didn't get it. Object तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा ना. तुम खाली past perfect को show करके क्या दिखाना चाह रहे हो? Negative past perfect. If I hadn't had eaten yesterday, वो ब्रैकेट में मत लिखो फिर मंजूर.
if I hadn't had spicy food yesterday, I would have been fine. सही है, बिल्कुल सही है मंजू. This sentence is perfect. Now this you are referring. See, that's what I'm saying. चलेंगे, मेन क्लॉज चलेगा. मैं इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, तो ये वर्ड मैं आपको नहीं दे रही थी. अभी बात करते हैं. अभय, रीना, हरमन, शोभा, असलम and Mohammed have given us the right answer. I would like to call here Rabah. Can you come and please read this sentence for me? Rabha. Rabah. Please come, Rabah. Read the sentence for me. Ma'am, if I had some money, I could have bought an ice cream. Thank you. Can you spell your name, please, for me? My name is Mainal, ma'am. Mahinal. Mahinal Rava. Okay, you have joined from which place, Mahinal? After one week, ma'am. एक हफ्ता हुआ है. कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं आसाम से हूँ, मैम. Okay, thank you so much for joining. Let's go to the Ma'am. next. हाँ जी, बताएं. Please tell me. जी, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा स्पीक इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा इसलिए हम ये ज्वाइन किए. हाँ, अभी एक ही हफ्ता हुआ है ना आपको. आप मेरी माने तो हफ्ते भर तक आराम से ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए. प्रैक्टिस यहाँ जो कर रहे हैं, इसके अलावा अपने पास में रात के समय जब भी टाइम मिले, दिन के समय टाइम मिले, प्रैक्टिस सेशंस में आइए. आप ज्वाइन कर सकते. मैं वहाँ प्रैक्टिस करना है. ये क्लास कर सकता हूँ ना, मैम? जी, मैं वहाँ दुबई जाके भी ये क्लास कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल. ये ऑल ओवर द वर्ल्ड से जुड़ते हैं लोग. Okay, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास आपका हैंडसेट होना चाहिए, बस. बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए. मतलब यू मस्ट हैव पेड फॉर इट. ये भी एक लॉजिक है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ, अब ये एक चीज और हम समझते हैं. इफ द डॉग hadn't barked, if the dog hadn't barked, the thief might have escaped. अगर कुत्ता भौंका नहीं होता तो चोर भाग गया होता. In the main clause, now here comes the word which I was just trying to focus by again and again. Instead of would have, we can also use could have or might have. अब यहाँ पे मैंने दो जनों को कहा था, अगर याद हो, कि आप जरा रुकिए. आप बताइए इसमें से कौन सा है, किसके ऊपर फोकस हो रही है बात. मैंने पूछा था आपसे, if you remember it. What was the reason? Because I wanted to bring you to this section of making you understand कि जब हम condition based sentences की बातें करते हैं, उसमें दो तरह के sentences जाते हैं. ये दो sentences अपने आप में पूरक हो सकते हैं, और इसमें से एक sentence होता है जो पूरा भाव बता रहा है, जो actual अपनी बात रखना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ में condition जुड़ी हुई. तो जो अपनी पूरी बात बताना चाह रहा है वो मेन क्लॉज में आता है, और जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एक पूंछ के जैसे काम करता है. इट्स अ टेल. इफ द मेन क्लॉज इज नॉट देयर, द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज गॉट नथिंग. The expression is not full. The complete sense is not happening. For example, the thief might have escaped. This is the main clause here. And the subordinate clause here is if the dog hadn't barked. So if I say if the dog hadn't barked, हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ छूट गया है, कुछ अभी कंप्लीट नहीं है. मतलब हिंदी में इसी सेक्शन को पढ़ती हूँ. अगर कुत्ता भौंका नहीं, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस में कमी है, पूरी बात समझ में नहीं आई, तुमने कुछ अधूरा मुझे बताया. ये क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ये क्लॉज अपनी बात पूरी कैसे करता है? मेन क्लॉज के साथ. तो एक्चुअल में बात किसके बारे में हो रही है? The thief might have escaped. तो आप बात कर रहे हैं कि चोर भागा नहीं होता. भागा नहीं होता, चोर भाग गया नहीं होता. इस बारे में बात करना चाहिए. और उसके बाद साथ में उस मेन क्लॉज के साथ आपने क्या जोड़ा? सबऑर्डिनेट क्लॉज. दोनों जगह मैंने शब्द काम में लिया है क्लॉज. That means both are having separate subject, both are having separate verbs. Please listen carefully. Both are having separate subjects, both are having separate verbs. But
both of them are connected to each other. One is behaving like a main clause, the other is behaving like a subordinate clause. This main clause is getting, it's complete, it is completed as in itself, but it needs the subordinate clause to complete the unreal situation, the unreal conditional situation. Now, this unreal conditional situation has got a beautiful word, could, would, might, which is very important for us to remember. इसके साथ में जब हमारे पास्ट जुड़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जुड़ते हैं, ये सारी चीजों में हमें और याद रखना जरूरी है. So please remember, main clause, subordinate clause, we are talking about past participles to be used, we are talking about conditions which has happened, which is not the present state, उससे भी पहले का past का positions which are unreal, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं, let's try. तो आपको दो शब्द, I'm so sorry, you have to keep these words with you. Could have, might have, would have तो है ही. So would have, could have, might have, ये तीन सेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिसको आप साथ रखिएगा. चलिए. Austin, if you want to say something, please type it. I'm going to read the chat slowly and gradually. I'm reaching you people also, and I can read all the answers written by Manjot. Anjali, sorry ma'am, I have to go. Okay, fine. I got to go. ठीक है. Nikita, if I had worked hard, I would have scored good marks. बिल्कुल सही Nikita, perfect है. So Aslam, Shobha, Abhay, Harman, and Aishwarya. Is Harman with me? No. Tika Noor Hadi. Could you please come and say hello to me? Tika Noor Hadi. Hello. Hello. Tika, you have joined from which place? Yeah, it's the first time. I'm from Indonesia. Okay, thank you for joining. And is this the first class that you are joining with me? Is this the first class that you are joining? Are you joining me for the first time? Yes. Okay, could you just read this sentence for me? If you hadn't reminded me, I might have forgotten to bring my books. Okay, so did you hear me related to this main clause and subordinate clause and subject, both the sides? Did you hear me that? I don't know. Okay, doesn't matter. Stay with me. Thank you so much. Please stay there. Okay, so Aslan, Shobha, Abhay, Harman, Aishwarya, and this is Reena who have given us the right answer. Let's understand it quickly. If you hadn't reminded me, I might have forgotten to bring my books. So I can also say would have and could have here. I could have forgotten to bring my books. Now it happens, the meaning section thoda sa kai baar aisa practice ke saath, when you are practicing these words, you will understand that there are places where might fits or might is giving more better expression than could and would. So that slowly and gradually, also grammatically it's not wrong, but I'm saying that these are the things that you can learn it also in as a speed of time. Don't forget that conditional clause can come after or before the main clause. Now again, listen to this. It says, I wouldn't have been late. This is something that I am trying to emphasize. इस बारे में हम कहना चाहते हैं कि भाई मैं लेट नहीं होती अगर अलार्म टाइम पे बजा होता. तो अगर अलार्म टाइम पे बजा होता, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है. A subordinate clause can be used either before the main clause or after the main clause. Doesn't matter. The expression still remains the same. I can say I wouldn't have been late if the alarm had gone off. So both ways. So what are we learning here? We are learning here a few aspects. Firstly, if there is a sentence will have a subject and a verb. Clear? When there is a verb, this verb talks about time. So as far as the third conditional is concerned, it always talks about past perfect. That means something that happened before even the past time. हम बात कर रहे हैं past perfect की. If I draw a line, if an action has happened, उससे पहले का. Okay,
That means if I say, right now, Tika gave us an answer, but before that, Ansh had given me an answer. So when Ansh had spoken, वो time उससे पहले था, तो वो perfect में जा चुका है already. Because Tika, what she said right now is now also in the past because that seconds have passed now. So past perfect form is supposedly to be used. We are using the past form in the first part of the sentence and in the second part of the sentence as well. But what are we trying to understand? That we have to keep a subordinate clause, a subordinate section, which is the conditional part, where we put the if section there, has to be attached with the main clause, where we are using would, could, might plus have. It could be have, and we are going to talk with the same part of verb again. Some we are using past participles, which is the third form of the verb that we have to use with them. I hope it is clear. दो sentences रखो, दोनों sentences के साथ में subject होंगे, दोनों sentences के साथ में verb होंगे. दोनों ही sentences जरूरी है, अपने आप में कुछ बात complete करेंगे, लेकिन एक section है जो main बात कहना चाहता है, वो main clause है. उस section के साथ में तुम्हें एक sentence और जोड़ना है जो पूरी बात complete नहीं कह पाता. उसमें subject और verb तो तुम्हें मिलता है, but वो अपनी बात कब complete कह पाता है? जब वो main clause के साथ जुड़ता है. जब वो मेन क्लॉज के साथ जुड़ेगा तब ये थर्ड कंडीशनल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. इस थर्ड फॉर्म ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस को कहने के लिए आपको अलग अलग तरह से अभी हमने बताया हाउ वेल यू कैन क्राफ्ट इट. आई विल श्योरली गो बैक एंड शो यू द स्लाइड वेयर वी हैव गॉट द टू वेज टू एक्सप्रेस इट. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कंपाइल एंड टीच यू इतने छोटे से टाइम पीरियड में. यस ऑस्टीन, प्लीज टाइप व्हाट यू हैव टू. आई एम हियरिंग यू. Type karo, please go ahead and say this. Thank you, Austin. Same to you. Thank you for saying that. Yes, Manjot, the answer is right. Z, thank you, Uttara. Thank you for joining. Go ahead, continue there. Pratap, Reena, Harman, Shobha, Aslam, and Abhay have given us the right answer. Can I have the other Shobhas speaking to me? Sarak. Shobha, yes, ma'am. Yes, ma'am. If my alarm hadn't gone off, I would have been late. Okay, thank you so much. Listen to me carefully, Sarak, Shobha. If mein karna. That's a dialect that you have of the Bengali touch that you have, but it's not wrong. I won't say put a question mark, but try and change it. If my alarm nahi, it is not rum here. Rum is R-U-M. This is RM. If my alarm, आम बोलते हो ना, हाथ को आम बोलते हो ना, वो बोलो. If my alarm नहीं, if my alarm. हाँ, run. If my alarm. R के sound को दबाओ. If my alarm. If my alarm hadn't gone off, I would hadn't gone off. हाँ. I would have been late. Okay, thank you. Hey, bro learner, you are present in this class. Do you have guts to mock on my name in Veena ma'am's class as you did on the other live class? Okay. Can't help it. I have also been through him, so just leave it, Austin. Okay, let's go to the next. Any questions here anybody has? Chalo. Agya. The class will extend for some minutes. If somebody has something, please, कोई appointment है किसी का, कहीं किसी को जाना है, उनको inform कर दीजिए कि हमें थोड़ा late होगा. Okay, Aslam, Reena, Pratap, and Mohammed have given us the right answers there. I would like to call Reena, R-I-N-A. Reena, would you please come and read this out for me? Okay, ma'am. If they had the time, they would have attended the meeting. अगर उनके पास समय होता तो वो मीटिंग में उपस्थित होते. Thank you so much. Thank you. Correct. आइए. तो वो आलम हो जाएगा. अगर आप डबल ए लगाओगे ना तो वो अलार्म का साउंड नहीं देगा, वो फिर आलम हो गया. We are talking about alarm.
ल का साउंड खींचना है वहां पे। तो मंजूद हम ऐसे नहीं बोल सकते उसको जो आपने टाइप किया। मैम माय अलार्म, हु इज दिस? मैम आपकी आवाज गूंज रही है, अभी भी गूंज रही है। स्टिल द इज इट echoing? आप लोगों को आवाज डबल आ रही है क्या? नो मैम। अच्छा, देयर इज समबडी टाइपिंग एंड सेइंग कि उसको आवाज डबल आ रही है। ओके, सो इफ आई हैड नोन हिज नेम आई वुड हैव सेड हेलो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ही जो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस आई की ही बात कर रहे हैं। सो पहले वाला सेंटेंस भी सब्जेक्ट आई लेके चल रहा है और दूसरा सेंटेंस भी आई लेकर ही चल रहा है, सब्जेक्ट, राइट? नाउ हियर व्हाई इट इज टेकिंग द आई सब्जेक्ट, मतलब आई को वापस से क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमें ये समझना है आई वुड हैव सेड हेलो, ये मेरा मेन मुद्दा था कहने का। आई वुड मतलब पास्ट फॉर्म है, आई वुड हैव सेड हेलो। अगर मुझे उसका नाम पता हो, अगर नाम पता होता कहाँ चला गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन बात क्या कहना चाहती हूँ, मैं उसको हेलो कह सकती हूँ अगर मुझे उसका नाम पता हो। तो दोनों जगह आप अपने इन छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखिए, which I have been trying to reiterate it time and again. Come, try. Thank you, Manjot, for typing. Okay, what? Shweta Mishra, you have to say something. Please type, Shweta. Aslam, I would have said hello. Yes, Aslam. Amira, Manjot, if I had known his name, I would have said hello. Okay, perfect. Shobha, Abhay, Pratap, Aslam, Harman, and Shobha have given the right answer. Just a second, please. Aishwarya, Abhay, अब खाना खा चुकी हो तो आ जाओ प्लीज जल्दी से। Are you there with me, Abhay? Come fast. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Abhay. Please read this out. Yes, ma'am. Second one is the right answer, ma'am. She wouldn't have been allowed to speak if she had disagreed with his point of view. Okay, great there. Where is the subordinate clause in this? Read that clause, subordinate clause. Read the subordinate clause, Abhay. I cannot hear you, Abhay. Anyone from the pro learner, can you read that? Anyone can type and tell me which is the subordinate clause. Quickly do that. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Shobha, sorry, tell me. She would not have been allowed to speak. This is a subordinate clause. No, this is the main clause. If she had agreed with his point of view, ये हमारा subordinate है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि आगे पीछे कहीं भी हम खिसका सकते हैं सबऑर्डिनेट को। इस सेंटेंस में हमने पीछे खिसका दिया उसको। बस मेन क्लॉज वहीं की वहीं। मेन क्लॉज के साथ में हमें क्या देखना है? 1 second, यही पढ़ रहे थे ना हम? हाँ, she wouldn't have been allowed to speak if she wouldn't have, would have, you remember बार बार आ रहा था हमारे लिए मेन क्लॉज में। सबऑर्डिनेट में हमने had और फिर पास्ट लिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंडीशन जो होती है, जो इफ के साथ सेंटेंस होगा ना, वो सबऑर्डिनेट होगी, और उस जो इफ के साथ सेंटेंस नहीं चल रहा था कॉमा के बाद में, वो मेन क्लॉज हो जाता है। शोभा, रीना, अंजलि, हरमन, शो एंड दे हैव गिवन द राइट आंसर। आधे से ज्यादा जने इसलिए चुप थे कि भाई मुझे मैम ने अगर कहा तो गलत हो जाएगा तो क्या होगा? गलत होगा तो हम ठीक करेंगे ना, सीख ही तो रहे। यू हैव टू स्पीक अप, it's very important. Nita ma'am, I understand. Thank you, Nitika. I want to improve my speaking mistake, spelling mistake. Basanti, best part is whenever you have to learn spelling mistakes, write it 2, 3, 4 times. Very important. Okay? Chaliye. Shobha, Reena, Anjali, Harman have given the right answer, including Shobha also. And this is Mahel. Mahel, could you please come and speak the sentence to me, please? Mahel.
Raba. Yes, I'm Yes, ma'am. speaking to you. Yeah. Please come. She would have finished the report on time if she had known the facts. She would have known all the facts. Thank you. Know, known, known. The third form of it. Okay, Known. चलिए आइए. So Uttara, I am taking your answer here. बहुत देर से आप जवाब दे रही हैं. Thank you so much. अगर उन्होंने हमें कहानी